تنہا ہماری شامیں، اکیلے ہمارے دن، اپنوں سے دور بیت گئے ڈھیر سارے دن، راہوں کی خاک چھان کے ہم نے گزارے دن، گہری اداسیوں میں کھرے ہیں بیچارے دن۔ لیکن تھکن بھی عزم سفر کی دلیل ہے، رستہ کٹھن ہے اور مسافت طویل ہے۔ سنتے یہ لوگ بندرگاہوں اور بڑی کاروباری منڈیوں میں آئی ہوئی اجناس اور سامان کو ملک کے کونے کونے تک بحفاظت اور بر وقت پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ لوڈ کرتے تھے اور کراچی تک ہم جاتے تھے، اور واپسی پر گندم لے کر آتے تھے قاسم پورٹ سے۔ وہ لاہور پرچون اتارتے تھے، وہاں سے اگر کوئی پنڈی کا مال مل جاتا یا اپنے علاقے اٹک کا مل جاتا تو وہ لوڈ کر آ جاتے تھے۔ تقریباً 16-17 دن لگ جاتے تھے۔ د ټرک خو زمونږ دا دغه دی چې لکه اوس مونږ کراچۍ چلوو، 3 ورځې دغسې ډلېږي، 3 ورځې د دې سې ډلېږي، ورځ په خالي کېدو ډکېدو لګي، لکه هفته 10 ورځې دنګ په چکر باندې لګي. په دې کې مونږ زه راځو، زمونږ تقریبا دا 45 ورځې وشو چې موږ راوتي یو، لا کور ته نه یو ځلي.
गाड़ी 1, ड्राइवर 2। ये उसूल इस मेहनत कश के वक्ती आराम के लिए है और साथ ही साथ सीखने सिखाने और क्लीनर को उस्ताद बनाने का अमल भी इन्हीं मुसावतों में तय पाता है। तो महीने में 10 दिन सुकून के होते हैं, 20 दिन जो है ना वो परेशानी में गुजर जाते हैं। माल की बाकी परेशानी होती है, माल लोड करते हैं, अल्लाह ना करे रास्ते में उस माल में कुछ भी ऊंच नीच हो गया वो हमारे सर पे आएगा। फिर चोर माल उतार ले, कुछ भी हो जाए वो पाल्टी हमारे पैसे काटेगी। बहुत सी नई दुनियाओं के दर भी खोलता है। मनपसंद मौसीकी और बदलते मनाजिर राह में ज्यादा तवील औकात-ए-कार, कम मुआवजा, नाराज माशरा और अंधेरों उजालों की मुसाफतें इनकी जिंदगी को बेसमर और हौसलों को पस्त कर देती हैं। नामुवाफिक सफरी सहूलतें, गैर मयारी रहायशी इंतजाम और अदम तहफ़्फ़ुज़ इनकी थकान को और बढ़ा देते हैं। अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए ज्यादातर ड्राइवर नशे का सहारा लेते हैं। जिस वक्त कंडक्टरी करते थे तो उस वक्त देखते रहे हैं, हमको नींद आ जाती है, उस्ताद कैसे चलाते हैं इतनी देर का। तो फिर हमको बाद में पता चला कि ये नशे की वजह से गाड़ी ज़्यादा देर तक चलाई जा सकती है, क्योंकि अगर 24 घंटे लगाए हैं तो 24 और लगाने पड़ जाएं तो वो आदमी नशे के बगैर, उस्ताद बोलता था कि नहीं लगते हैं, बस अगर नशा होगा तो लगेंगे। सारी दुनिया में जो लॉन्ग रूट्स पे लोग
پہ ہوتے ہیں اور ان کی ڈفرینٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، جیسے وہ نشہ بھی کر رہے ہیں، انجیکشن بھی لگوا رہے ہیں، نارکوٹکس بھی یوز کر رہے ہیں، اور وہ اپنے روٹ کے دوران جب وہ لمبے لمبے سفرز پہ جاتے ہیں ان کو نائٹ سٹیز بھی ملتے ہیں اور ایسی جگہوں پہ بھی سٹے کرتے ہیں جہاں پہ دے انڈلج ان ٹو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. جس دنیا جہان میں ٹرک لانگ ڈسٹینس ٹرک ڈرائیورز یا ٹرکرز کو ہائی رسک گروپ کہا جاتا ہے، اور یہ پریکٹس پاکستان میں بھی ہے. ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ جی موسٹ پرابیبلی یہ اس کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے دیٹ از ون آف دی کاز لیکن ناٹ دی اونلی کاز. جو نیشنل لیول کی، ریجنل لیول کی اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن نے اسٹڈیز کی ہیں، اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو سب سے کامن کاز جو ہے وہ انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز کی ہے. ٹیسٹ کرانے کے بعد جو اپنی مرضی سے ٹیسٹ کراتے ہیں، جس کو ہم والنٹری کاؤنسلنگ اینڈ کانفیڈینشیل ٹیسٹنگ کہتے ہیں، اس کے بعد جو پازیٹیو نکلتے ہیں، ہمارے پاس اے آر ٹی سینٹرز ہیں پورے ملک میں 18. ان میں جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں ان کو پھر وہاں ہم رجسٹر کرا دیتے ہیں اور ان کا فری آف کاسٹ ساری ورک اپ ہوتی ہیں. جو مہنگے ٹیسٹ ہیں وہ سارے CD4 وائرل لوڈز فری آف کاسٹ کرائے جاتے ہیں. پھر ہم ان کو فری آف کاسٹ میڈیسنز اگر ضرورت ہے ان کو، اور وہ اس لیول پہ سطح پہ ہیں HIV کی کہ ان کو دوائیں دی جانی چاہیے، تو ان 18 سینٹرز پہ پورے ملک میں گلوبل فنڈ کی مدد سے ہم مفت دوائیں بھی فراہم کر رہے ہیں. معاشرے کا منفی رد عمل اور برتاؤ
मालिक हमको 3,000 रुपया तनख्वाह देता है महीने का और 2,000 रुपया फेरे का देता है। बस के फेरा ज़्यादा लग गया 8, 9, 10,000 बन जाता है, फेरा कम लग गया 5, 6, 7,000 बन जाता है। ड्राइवर की एक आदत बनी हुई है ना, उसने चाहे आप जितने मर्जी उसे पैसे दो, ठीक है, जितने भी पैसे दोगे वो हेरा फेरी लाजमी करेगा किसी ना किसी काम में। जाते हुए कहेगा कि मेरा टायर पंचर हो गया था, पुलिस वालों को अगर 100 रुपया देता है तो कहता है, कहेगा मैंने 200 रुपये दिए हैं, फलां चेक पोस्ट पे मैंने इतने दिए हैं। तो वो जाहिर है वो आप उनके साथ तो नहीं होते, वो तो आपको उनकी कभी माननी पड़ती है कभी नहीं माननी पड़ती है, बस इसी तरह। मालिक तो बोलते हैं जिधर 6 फेरे लगते हैं वहाँ 12 लगाओ, वो तो उनको तो कुछ भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो उनको इस बात से कुछ भी नहीं है। वो बोलते थे कि अगर एक और फेरा लगाओ, वो लगा कर आते थे तो बोलते हैं ड्राइवर थोड़ा लेट है एक और लगा दो। इंसान है आखिर, कुछ तो नींद आती है, 24 घंटे लगातार गाड़ी चलाना कोई आसान बात नहीं है। और 24 घंटे के बाद मालिक बोले कि 24 घंटे और लगाओ, तो वो किस तरह लगाएंगे। सिटी से बाहर जाते हैं ना कहीं पे, क्योंकि अब उन्हें पता होता है कि अब हमारे ओनर को कुछ पता नहीं है कि हम कहाँ पे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो रास्ते में जाएंगे कहीं पे भी अड्डे पे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो रोज़ाना का रूट है उनका, तो वो जाते हुए अपनी उनकी जो सोसाइटी है उसमें जाके बैठ जाते हैं, फिर सारी सारी रात 2-2 दिन कह देते हैं गाड़ी की ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहती है। वो अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं, नशा तमाशा जो भी उनकी हॉबीज़ होती हैं वो अपनी सोसाइटी में जाके वो बिल्कुल। ट्रक ड्राइवर वक्त की सख्तियों और सफर की बेरंगी से बचने के लिए रंगों का एक जहां आबाद करते हैं। तस्वीरों और शेरों के ये शैदाई अपने शौक की तस्कीन और दूसरों से बेहतर नजर आने की कोशिश में मालिक की आमदनी का बड़ा हिस्सा ट्रक की तज़ीनो आराइश पर सर्फ करवा देते हैं। सड़क पे गाड़ी जा रही होती है, डेकोरेशन वाली जा रही होती है, दूसरी शादी जब होती है उसको भी शौक लग जाता है, शौर आ जाता है कि भाई मैं भी इस तरह गाड़ी बनाऊं। जब हम इन रंगों को देखते हैं हमें रंग नजर आते हैं, हमारा सफर आसानी से होता है, हम खुश होते हैं, इसके साथ चलते हैं हम। ये सब ड्राइवरों की शौक होती है
उनकी वजह से हर चीज़ लगाते हैं, लाटू लगा रहे हैं हम लोग, एरियल लगाते हैं, टेपें लगाते हैं, फुम्बड़ लगाते हैं, इसके साथ फूल वगैरह बांधते हैं। हमारे माशरे का ये इंतहाई फाल मेहनत कश, जिसकी औलाद उसकी तरबियत से महरूम, अपने अहलो अयाल का वाहिद कफील, अगर किसी वजह से घर बैठ जाए तो सारे खानदान को माशी सहारा कौन देगा, कोई नहीं जानता। ये गाड़ी तो बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारा से एक्सीडेंट हो गया, हम लंगड़ा हो गया, अगर हमारा को ऐसा तकलीफ पहुंच गया कि हम सुबह के लिए कमाई का कोई तरीका हमारा नहीं होता है, फिर यह हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि हमारा इंश्योरेंस हो जाए, या अगर कोई तरीका करे कि हमारे बल बच के लिए पीछे की वक्त तो कोई तरीका करे। वो इदारे जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा मुलाजमीन काम करते हैं, उसके ऊपर UBI कानून का इतलाक़ होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद से एम्प्लॉयर पे यानी आजिर पे लाजिम हो जाता है कि वो हर एम्प्लॉई के बिहाफ पे 6% 480 रुपये कंट्रीब्यूशन की अदायगी शुरू करता है। जितने अरसे उसका कंट्रीब्यूशन आया है उसी की बुनियाद पे उसकी बेनिफिट का जो है कैलकुलेशन होता है। इसके लिए जो है वो मैं बता दूं कि 60 साल की उम्र है मर्द हजरात के लिए पेंशन के हसूल के लिए, और 55 ईयर्स की एज या 55 साल की उम्र है ख़वातीन के लिए। इदारे और वसाइल तो मौजूद हैं, मगर बंदा मजदूर को खुशहाली फिर भी नसीब नहीं। एक बंदे के पास भी आते तो वो दूसरे को लाजमी पता था कि यार गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई सिस्टम चल रहा है ड्राइवरों के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऑनर इतना बुरा है कि वो इस चीज़ से डिसएग्री करता, वो ज़रूर इनके साथ एग्री करते। लेकिन आज तक हमारे पास इस तरह का कोई बंदा भी नहीं आया। तो खुद हमें अप्रोच करें तो हम ज़रूर, हमें वरना पता नहीं चल सकता कि किस मालिक के 25 ट्रक हैं, किस मालिक के 20 ट्रक हैं। अगर वो किसी कंपनी की सूरत में काम कर रहा है तो ज़रूर उस पर जो है वो हम उसको कानून के दायरे में लेकर आएंगे। सरे राह रवां दवां रंगीन ट्रकों को देखकर हर कोई नजरअंदाज कर देता है, लेकिन हमारी जिंदगी की नेमतें हमारी दहलीज तक पहुंचाने वाले का दर खोलकर कभी कोई नहीं झांकता कि हमारी जिंदगी को रोशन करने वाले की अपनी जिंदगी में कितने अंधेरे हैं। अब जरूरत सिर्फ दिल में एहतराम और शफकत के जज्बात रखने की नहीं, बल्कि अमली तौर पर इनकी बेहतरी के लिए कुछ कर दिखाने की है। उनको सोशल सपोर्ट के लिए चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम उनको एक्सेप्ट करें कि ये हमारा सोसाइटी का अहम हिस्सा है, प्रोडक्टिव हिस्सा है, और ये हमारे लिए इंतहाई अहम काम सर अंजाम दे रहे हैं। ड्राइवर की इंश्योरेंस, पेंशन और दीगर मराद बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल हैं। इन हुकूक तक आसान रसाई उनके आज और आने वाले कल को पुरुमीद कर सकती है। क़याम ताम की बेहतर सहूलतें, कम से कम मजदूरी और ज्यादा से ज्यादा औकात कार का तयन ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलात में कमी ला सकता है। अरसे बाद उनका एक रेगुलर फिजिकल चेकअप होना चाहिए कि उसको देखा जाए कि उसकी सेहत पे पिछले उस 6 महीने में क्या असरात पड़े हैं, और या 1 साल बाद, ताकि वो अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें हों तो वो उसको अप्रॉप्रिएटली सजेस्ट किया जा सके कि जी अब आप ये चीज़ें अपने लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर जो वक्फे हैं, जो छुट्टियां हैं, वो भी अप्रॉप्रिएट होनी चाहिए कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने 2 हफ्ते काम कर लिया तो उसके बाद उनको
जाके हम अपने ही गांव में। इस मोड़ से तो घर फकत एक आध मील है। अब रास्ता कठिन न मुसाफत तवील है।